like you people. When he came to me, he was also just like you. Sit down, sit down, sit down, keep sitting. He was just like you, but he was very, very hard work. He worked laboriously, and now he is done. The time will come when I will call you also here, like this. Now I will ask him to share his views with you. And I will ask you people also to ask any questions from him. That how he prepared for preliminary, for main examination, and what difficulties he has faced. Now it will be a motivational point. Yes, mother, introduce yourself and tell them how you prepared for that. Let's go. Good afternoon, everyone. I am Madhav Agarwal. I completed my graduation in back 2019 from Guru Nanak Dev University main campus, and I joined SIR in 2017. I and Varis, we both joined there. Both were class fellows there. Yes, Varis used to sit here and I used to sit there. First seat was occupied by us. We started our journey together only, and first of all, I'd like to thank Sir only because more than I, he believed in me. मेरे खुद में तो चलो एक स्पार्क था, बट सर को विश्वास था कि मैं कर लूंगा. आज नहीं तो कल चलो फेलियर्स आते हैं लाइफ में. मैंने हरियाणा पहले भी दिया था, प्रीलिम्स फर्स्ट गो में मैंने क्रैक किया था. फिर पंजाब मैंने दिया, पंजाब प्रीलिम्स मेंस दिया, इंटरव्यू रैप दिया मेरा. हरियाणा फाइनली आई गॉट. And throughout my journey, Sir supported me. Sir had a belief in me. 2017 में I still remember when I came, my father and I came to Sir, and I still remember Sir told me होया पे आया था, मतलब कि बस एक ग्रेजुएशन करके आवे, he is selected as a judge. मैं कहा सर लाइक ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, how could you be so much sure? ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ I know you will be selected for sure. और first day ही second day test ਹੁੰਦਾ है, CPC start कर दिया सी. Second day test ਹੁੰਦਾ है. Varis only committed one mistake. I committed 2 mistakes. ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ. We were the top scorers in the class. ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ I am very much sure कि one day you will succeed because such a good performance on in first ready test only. So it makes me very like sir ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ. And I am very much thankful to sir because only because of his belief in me I am today here. I am very much thankful to you, sir. How you prepared for preliminary? Throw some light over that, so that because they are going to appear in preliminary exam. For prelims, sir's strategy is best. Let me tell you, prelim में सर का बच्चा नहीं रह सकता. अगर आपने सर को अच्छे से फॉलो कर लिया, सर की बात को समझ लिया, एंड द सीरियसनेस बिहाइंड हिज, बार बार जो सर कहते हैं क्रैम करो, वो ही आपको प्रीलिम क्रैक करवाएगा. मार्क माय वर्ड. मैंने आज तक मैंने इंटरव्यू भी क्रैमिंग थी, सर की क्रैमिंग के कारण ही मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हुआ, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली मुझे ऐसे पूछना शुरू कर दिया था, रेजिस्टर कौन से सेक्शन में दिया हुआ है. दिस वाज द क्वेश्चन दे आस्क्ड मी. फिर उन्होंने मुझे पूछा कि सेक्शन 91 सीपीसी बताओ क्या है, 92 बताओ सीपीसी. ब्लंटली सीधे सेक्शन नंबर्स एंड प्रोविजन दे डील विद. ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड वो कहाँ से आपको आएंगे? व्हेन यू विल क्रैम सेक्शन नंबर्स. लेट मी टेल यू, 3-4 क्वेश्चंस हर पेपर में आप उठा के देख लो सेक्शन नंबर्स से हैं, एंड दैट विल गिव यू एन एज. स्पेशली जो माइनर लॉज हैं उसके सेक्शंस पूरे के पूरे क्रैम करो, क्यों वो फिजिबल हैं, क्रैम किए जा सकते हैं. हिंदू लॉ का एक सेक्शन नंबर हरियाणा में ही आया था, ठीक है. आई वॉज टेकन अ बैक. मेरे कुछ फ्रेंड जो अपने आप को इतना मतलब कि दे आर वेरी मच, उनका कैलिबर था, वो एक नंबर से 2 नंबर से सिर्फ इसी कारण रहे हैं क्योंकि वो सेक्शन नंबर हिंदू लॉ का, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन नंबर गलत करा. दैट इज आई वुड से कि वो एक बहुत मतलब कि मिस्टेक उन्होंने की. हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 8 या 9 था,
वो गलत कराए हैं। आई वॉज लाइक टेकन अ बैक, यार ये आप कैसे गलत कर सकते हो? क्यों? वो प्रैक्टिस नहीं थी, वो उनकी क्रैमिंग नहीं थी। क्रैमिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी। अब वो कैसे, लेट मी टेल यू। मेंस में कैसे करेगा? प्रीलिम्स का तो श्योर है कि क्रैमिंग, एंड सेकंड इज योर पेपर सॉल्विंग एबिलिटी। जितना आप पेपर सॉल्व करोगे, जितने आप रोज के क्वेश्चंस करोगे। मेरा और वारिस का एक और टारगेट होता था, हम 10 मिनट में ये 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर सर को सॉल्व करके देते। फर्स्ट मैं हूँ, या हमारा रेस हम दोनों का होता था कि हमने 7-8 मिनट में उठना ही उठना है, और हम उठ के क्लास से सबसे बाहर होते थे पेपर देके। 25 क्वेश्चन का आज भी मुझे लगता है पेपर आते ही आपके पास। वो क्वेश्चन पेपर हमने रोज करना, और आई थिंक अभी शायद आपको सर बता देते होंगे कि कल या परसों आपका 125 क्वेश्चन का टेस्ट था। हमारे टाइम पे सरप्राइज होता था, हमें पता लगता था अब आया जी 125, आज 125 का आ गया है। जब अशोक भाई ने ना निकालने पेपर, इतना मोटा क्वेश्चन पेपर, तो तब पता लगता था कि 125 का टेस्ट है। तो वो भी हमारा टारगेट होता था। मेरा रिकॉर्ड है, मैंने 35 मिनट्स में 125 क्वेश्चन का पेपर भी किया हुआ है। हरियाणा का प्रीलिम्स मैंने 1 घंटे में कंप्लीट किया था, पंजाब का प्रीलिम्स मैंने 45 मिनट में पेपर कंप्लीट कर दिया। इट इज प्रैक्टिस, इट इज योर प्रैक्टिस। नाउ प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। नाउ यू आर अपीयरिंग डेली इन सॉल्विंग द टेस्ट, नाउ दैट इज द प्रैक्टिस। ही प्रैक्टिस वेरी सीरियस, that is why he could complete the test within 1 hour, where 2 hours are given. They could put stress. You are on right track, in other words, you can say. Let me assure you, sorry sir, एक और चीज, आपको लग रहा होगा कि यार क्वेश्चंस बदल के आ रहे हैं। जो आप कर रहे हो ना, क्वेश्चंस वही आने हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी लैंग्वेज बदलेगी। आप इन क्वेश्चंस को 2-3 बुक्स हैं उनको रेफर करके अच्छे से कर लोगे ना, इससे ज्यादा प्रीलिम्स के लिए मेहनत आई डोंट थिंक आपको चाहिए। क्रैमिंग, गेट थ्रू योर बेयर एक्ट की मास्टरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपको सर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना फोकस बेयर एक्ट की हर प्रोविजन पे डालता होगा। कई बार क्या होता है कि वैसे सिग्निफिकेंट नहीं होती प्रोविजन, बट एग्जामिनर थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए पेपर अनटच्ड प्रोविजन, बहुत सी इनसिग्निफिकेंट प्रोविजन को भी क्वेश्चन फ्रेम करके आपको दे सकता है। वहां पे सरप्राइज होने से अच्छा है, यहाँ पे जितने सरप्राइजेस ले सकते हो यहाँ पे लेकर जाओ। यहाँ पे घर पे जितनी प्रैक्टिस करोगे वो इतना अच्छा है। मेरे साथ ये भी हुआ है कि सर का ही पेपर सेट किया हुआ मॉक पेपर से 15 दिन पहले मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करते हुए मैंने 12 से 13 क्वेश्चंस जो कि मुझे नहीं करने चाहिए थे, मैंने गलत कर दिए। एंड आई कॉल वारिस, ये मेरा, ही इज माई एग्नी आंट फॉर एवरीथिंग। वी हैव बीन इन आवर जर्नी थ्रू आउट। मैंने वारिस को कॉल किया, मैं कहा वारिस भाई ये हो गया आज पेपर में। तो ही टोल्ड कि व्हाट यू थिंक। मैं कहा यार मैं सोच रहा हूँ कि अब एक बार सारी बुक्स लगा लूँ। तो उसने वहां पे मुझे रोका, माधव 2-3 अगर करने जाएगा, बुक्स करेगा भी, तो उसमें से ज्यादा तुझे, मैं स्टिल रिमेंबर, तुझे 3 या 4 पॉइंट्स नए मिलेंगे, बाकी सारा वही है जो तूने किया हुआ है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एट दैट मोमेंट। तो इस बात का बताने के 2 पर्पज। 1, लास्ट मिनट एंग्जाइटी आना इज नॉर्मल, लास्ट मिनट सरप्राइजेस मिलना इज नॉर्मल। पेपर से पहले एंग्जाइटी और सरप्राइजेस मिलना इज नॉर्मल। तब जितने मर्जी सरप्राइजेस ले जो, वो सरप्राइजेस लिए हुए, आई एम टेलिंग यू, आपकी इंटेंट सही है तो थिंग्स विल ऑलवेज फॉल इन योर फेवर। पेपर आपको सरप्राइज नहीं करेगा। आपको 90% पेपर आपकी रेंज का लगेगा। व्हेन, कब लगेगा? जब आपने खुद घर पे प्रैक्टिस, यहाँ पे प्रैक्टिस की हुई है, यहाँ पे टेस्ट रोज दिए हैं। कई बार ऐसे भी होता था, मैं देखता होता था कि बच्चों ने ना पेपर ही नहीं करना। सर तो नहीं कहेंगे, सर ने तो अपनी तरफ से एफर्ट डाल दिया है, पेपर दे दिया है, करना ना करना अब आपके ऊपर है। अगर नहीं कर रहे हो तो वो भी आपका लॉस है, ठीक है। बट आई हैव सीन के सर जितना एफर्ट डालते हैं, क्रैमिंग पे सर का खुद का फोकस रहता है, ठीक है। फिर एक वो प्रैक्टिस की उठा के बच्चे को ही कहना कि वो समझाओ प्रोविजन, दैट विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ योर हिच। और वो आपको अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। यू विल बी एबल टू फेस अ बिग पैनल इन द इंटरव्यू। 9 मेंबर्स का पैनल, 10 मेंबर्स का पैनल जो होता है, पंजाब में 9 मेंबर्स का पैनल था मेरे सामने। आई परफॉर्म वेरी वेल। चलो वो कई बार थिंग्स डोंट फॉल इन योर फेवर। एंड हरियाणा में 6 मेंबर्स का पैनल था मेरे सामने, एंड दे वर लाइक थ्रोइंग क्वेश्चंस, ऐसे रैपिड फायर चल रहा था, ढक ढक क्वेश्चंस आ रहे थे। वो क्यों?
क्योंकि मैं यहाँ से सारी हिट्स निकाल के गया था। प्रीलिम्स का यही है 3 चीजें, क्रैमिंग, सेकंड मास्टर योर बैरेक्ट। बैरेक्ट में आपको मे शेल का वो तो हमें अब समझ ही आ गया कि मे शेल कितना सिग्निफिकेंट है। उसके बाद बैरेक्ट में एक और चीज आई एम टेलिंग यू, सेमी कॉलन्स, कॉलन्स, फुल स्टॉप, कॉमास, ये बहुत हेल्प करेंगे। उसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। इस बार मेंस का सिविल 2 का हरियाणा का लास्ट क्वेश्चन देखना। वो क्वेश्चन था जैसे हमें सर हिंदू सक्सेशन में प्रोपोजिशन देते हैं वैसा क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द शेयर्स। एंड सर इतना तो मानेंगे कि सबसे क्लास में पहले शेयर्स मैं कैलकुलेट करके देखता था। You must be expert in math also. Yes, You should Madhav, how much benefit was given to you by your notebook? Whether they were valuable or नोटबुक्स का तो लाइक ये प्रेपरेशन में तो जो है आई बिलीव, मैं अभी सर से बात कर रहा था, वो मैंने नोटबुक्स कंपाइल करके ब्रीफ केस में रख लिए हैं, क्योंकि थ्रू आउट माई जर्नी इट विल बी एन एसेट फॉर मी। नोटबुक्स आर मोर देन सफिशिएंट। किताबें खोलने मत जाना। हम बहुत जल्दी ना तकवानी, एक जैन, ये बहुत बुक्स पढ़ी हैं, हम उनको रेफर करना शुरू करते हैं। जितना अपना कंटेंट लिमिट कर लोगे उतना इजी रहोगे। 10 बुक को एक बार पढ़ने की बजाय ना एक बुक को 10 बार पढ़ के जाओ। good? लेंथ आपको मिल जाएगी आपकी नोटबुक से ही। एक प्रोविजन है, प्रोविजन को एक्सप्लेन किया, उसके ऊपर एक एग्जाम्पल है सर, क्योंकि हर प्रोविजन पे एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को पढ़ो। एग्जाम्पल के बाद यू जस्ट सेट द, जो भी अगर आपको प्रोपोजिशन दी है उसको सॉल्व करो। प्रोपोजिशन नहीं है वैसे आंसर है, उसको आंसर को एक्सप्लेन कर दो, क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर सर का एक एग्जाम्पल ऑर्डर 21 में सर द लाइफ स्टॉक वाला एग्जाम्पल, रामपुरा फूल का। आई स्टिल रिमेंबर, यस सर की एग्जाम्पल्स अभी भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो मेरे दिमाग में है। एक एग्जाम्पल सर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पीएनबी बैंक और पोस्ट ऑफिस को लेकर सर आप एक एग्जाम्पल करवाते हो, वो एग्जाम्पल, सारी एग्जाम्पल्स वो अभी भी मेरे दिमाग में ऐसे फिट हैं। क्यों? मैंने उन नोट्स को अपने बैरेक्ट को साथ में रख के सिंक्रनाइज करके पढ़ा। हमें आदत होती थी, हमारे पास 8-10 पेन्स होते थे, 8-10 ही हमारे पास कलर के नोट्स होते थे। स्टेशनरी का हमारे पास, हम दोनों के पास भरपूर वो होता था, स्टॉक होता था। वो कलरफुल हेल्प, ठीक है, हम कोई हमें कहेगा ये क्या चाइल्डिश अप्रोच है, दिस इज द बेस्ट अप्रोच। आप जितना अपने आप को मतलब कि अपना प्रिपेयर अभी करके जाओगे, जितना पढ़ के जाना है यहाँ से पढ़ के जाओ, घर पे जाके सिर्फ रिवीजन करो। यहाँ पे सीख के जाओ, यहाँ से पढ़ के जाओ, घर पे जाके आज का रिवाइज करो। अगर इट्स 5 डे वीक तो 2 दिन है आपके पास रिवीजन के लिए, फिर 6 डे वीक आपके पास 1 दिन है। बट वो 1 दिन अगर आपके पास नहीं भी है सैटरडे का, तो आप किसी ना किसी तरह कहीं से अपने रेगुलर रूटीन से निकालो। मैं रिवीजन पे बहुत फोकस करता होता था। अगर मेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, सर ने अगला सब्जेक्ट शुरू कर दिया है, मैं अपना पिछला सब्जेक्ट अपने एंड पे रिवाइज करता रहता। प्रीलिम्स के लिए आई टोल्ड यू वो 3 चीजें। कमिंग टू मेंस, आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जितनी देर तक एग्जीक्यूशन पे काम नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है प्रिपरेशन करने। सर देते हैं हमको क्वेश्चंस, वो अटेम्प्ट करना अब हम पे है। सर ने क्वेश्चन दे दिया है, जस्ट अटेम्प्ट। क्योंकि सर इतने हेल्पफुल है, लेट मी टेल यू माय पार्ट। मैंने सर के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे की है। मैंने सर के घर के बिल्कुल साथ वाला पीजी, बाय हुक एंड क्रूक सर को मना के, अशोक को मना के मैंने सर के साथ वाला पीजी लिया। तो 1 महीना मैं सर के पास रहा। आई यूज टू ट्रबल सर अलॉट। मैंने 2 नोटबुक्स बनाए एंड सर हेल्प्ड मी अलॉट। सर ने इतना मेरा हेल्प किया है, मैंने 2 नोटबुक्स बनाए। एक नोटबुक सर के पास होती थी चेकिंग के लिए, एक नोटबुक पे मैं काम करता था। लेट मी टेल यू, ये मुझे पता है कि सर कितने हेल्पफुल हैं, सर कितना अपना एफर्ट डालते हैं। इट्स जस्ट हाउ वी कैन गेट इट फ्रॉम सर, वो हमारे ऊपर है। हमने यहाँ पे क्लासेस लगा के चले जाना है, सर ने भी घर चला जाना है। सर के पास अपने ऑक्यूपेशन हैं, सर की अपनी एंगेजमेंट्स हैं, सर करेंगे। अगर हम देंगे सर को कि सर हमारा प्लीज ये काम कर दो, तो सर करके देंगे। क्योंकि सर का लॉ तो हमें पता ही है ना कि लाइक हमें तो इतना आता है, सर को, सर के जितना मतलब कि सर को जितनी नॉलेज है उसका लाइक अगर हम कह दें कि 4-5% भी हमें आता है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट सर। ठीक है, इट्स अप टू यू। अब आपको उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो। अगेन क्रैमिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मेंस की क्रैमिंग किसी और हिसाब से होगी। मेंस की क्रैमिंग कैसे होगी, आपके सेक्शन नंबर्स हैं प्लस की वर्ड्स ऑफ द सेक्शन। ठीक है, आपके पास
वहां पे बैरेक्ट्स होंगे, मैंने इतना बैरेक्ट वहां पे यूज किया, मैंने सारा पेपर बैरेक्ट से ही किया। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेक्शन नंबर पता है झट से हम, अगर हमें सेक्शन नंबर नहीं पता तो हम कंफ्यूज होंगे यार ये प्रोविजन कहां से आ रही है। सेक्शन नंबर पता है, हम इंडेक्स खोल लेंगे, बैरेक्ट खोल लेंगे 1 मिनट में, बैरेक्ट खोला, कीवर्ड्स देखे तो वहां से हमने लिख दिया। ठीक है, बेसिकली क्या करना क्या है, अगर क्वेश्चन मे या शेल पे डिस्क्रिप्शन बेस्ड है, हम मे एंड शेल का एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हम उन एग्जांपल्स को कवर करेंगे, एग्जांपल से एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है, एग्जांपल से एक्सप्लेन किया, जस्ट गिव योर डिसीजन एंड दैट्स इट। Very, very. Now he will be working as civil judge come judicial magistrate. Now earlier he was ordinary person. Now he is extraordinary. Now follow him. Rather I will ask you people to ask some questions in order to make your ambiguity very, very crystal clear. Yes, Suvi. Any question? Mankirat? Yes, ask such question if it comes to your mind. ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੇਨਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੇਨਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਆਈ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਰੋਟ 48 पेजेस in मेंस, मेरे 48-49 पेजेस मेंस दे सी। हरियाणा के टाइम मैंने 32-33 पेजेस लिखे थे, पंजाब के टाइम मैंने लिखे थे अराउंड 42-43 पेजेस, इस बार मेरे 48 पेजेस तक का 52 की शीट्स दी हैं उन्होंने, तो किसी पर्पज से दी हैं। अगर वो 52 शीट्स आपको दे रहे हैं तो दे हैव इन माइंड कि वी वांट लेंथ। ठीक है, ये चीज समझ के चलो। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी, एग्जीक्यूशन से। अगेन यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाओगे, वहां पे हर्डल नहीं लगेगा। रोज का एक क्वेश्चन लिख रहे हो, आई एम वेरी श्योर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला। टाइम मैनेजमेंट इज दैट। ठीक है, रेगुलरली आप पंक्चुअल हो। वारिस किसी वक्त ही क्लास में लेट होता था, आई गेस 1-2 बार हुआ होगा। Both of them were very punctual, very punctual. Yes, Avneet, any other question? Yes, please. जितना ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ब्रेन या ਤੁਹਾਡੀ बॉडी इजाजत, यहाँ से पढ़ के गए हो, मेरा क्या शेड्यूल होता था वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि हम कोई अराउंड, मैं तो पहले तो क्लास में ही 40 मिनट, अशोक भैया और मैं साथ में आते थे, कई बार अशोक भैया भी लेट होते थे। One thing was very important with it, that we used to read all the books which are lying in my office. You can also take any book from my office and read that RCR, Supreme Court reports, because that was beneficial. Give them some hints how you devoted time to read them. मैं मॉर्निंग में अर्ली आ गया, अशोक भैया ने ऑफिस खोल देना है, मुझे अगर इन केस कई बार मैंने इंडेक्स से देखा होता था कि ये जजमेंट पढ़नी है, ठीक है, तब ऑनलाइन थोड़ा सा लिमिटेड होता था रिसोर्स, फिर तो मैंने ऑनलाइन 1-2 सब्सक्रिप्शन ले ली थी, तब मैं बुक्स लेता था सर की, वहाँ से जजमेंट पढ़ता था, मैं आके वहाँ पे जजमेंट पढ़नी। फिर वी यूज टू डिस्कस, वारिस होते थे, सृष्टि दीदी होते थे, ठीक है, फिर मोहित भैया होते थे, हम तीनों चारों हम डिस्कस, वी यूज टू डिवोट एम्पल टाइम इन डिस्कसिंग द प्रोविजन। खुद की प्रॉब्लम्स हम बहुत लेके आते थे, वारिस ने रोज कोई ना कोई नई प्रॉब्लम लेके आनी, वो पहले वो 40 मिनट हमने इस चीज में डिवोट करने। फिर उसके बाद क्लासेस हुई, क्योंकि क्लासेस में तो यू गेट एम्पल टाइम, ब्रेक मिलती हैं आपको, ब्रेक मिलती हैं, टेस्ट हुआ उसके बाद ब्रेक मिल गई, यू हैव अ टी और कॉफी ब्रेक। मुझे लगता है क्लासेस से आप थक के नहीं जाते होगे, इट्स जस्ट यू नीड अ लाइक ब्रेक फॉर योरसेल्फ। वैसे आप मेंटली टायर्ड नहीं होते जाते होगे, अगर आप मेंटली टायर्ड होकर जा रहे हो तो यू नीड टू वर्क ऑन योर हेल्थ। ठीक है, अगर आप मेंटली टायर्ड होकर जा रहे हो, यू जस्ट नीड अ टाइम फॉर योरसेल्फ। अगर ज्यादा बात है, यहाँ से एट व्हाट टाइम यू गेट फ्री, मैं 2:30 बजे घर पहुंचता था, 2:30 यू रीच होम, यू हैव योर लंच, लंच के बाद आई हैव अराउंड नैप ऑफ अराउंड 30 to 45 मिनट, वो मेरा एक नैप होता था। उसके बाद मैं जो आज का पढ़ा है पहले वो पढ़ना, पेपर देखना, ये होता था। अगर माइनर सब्जेक्ट है ना तो उसके अराउंड 10 या 12 टेस्ट होते थे, अगर 3-4 टेस्ट हो गए वो लास्ट डे तक मैंने वो टेस्ट सारे के सारे देखते जाने हैं, फिर से रिपीट करते जाने हैं। वो टेस्ट 25-25 क्वेश्चन बनने हैं, वो मैंने बार बार देखते जाने। मेरा और वारिस का तो ये होता था कि सर ना कई बार हमें ट्रिक करने के लिए ऑप्शन चेंज कर देते थे, हमें तो ऑप्शन याद होती थी। अगर अनसर्टेन का सेक्शन 18 सी में है तो हमने सी मार्क कराना, हमने दोनों ने एक बार गलत कर दिया, अनसर्टेन देखा सी मार्क कर दिया, हमने ये तो देखा नहीं, सर ने ऑप्शन चेंज कर दिया, हमने ये तक गलतियां की हैं। वहीं से हम सीखे हैं चीजों को कि ज्यादा रश भी नहीं करना, हमें ये चीजें हमारी इतनी क्लियर होती थी कि कहाँ पे क्या प्रोविजन पड़ी है वो हमें क्लियर होता था।
उसके बाद मैं अराउंड जैसे 1 घंटा की ब्रेक ली, जैसे भी ले ली, मैं 4 बजे अपना बैठता था। 4 से लेकर 7 बजे तक मेरी एक प्रॉपर सिटिंग होती थी। उसमें मैंने आज का और साथ में टेस्ट पेपर वो कर ली। उसके बाद आई हैव माई डिनर लेने के बाद मैं 8 बजे फिर बैठ जाता था। 8 बजे डिनर करने के बाद मैं आधा पौना घंटा कुछ एक टॉपिक मैंने चुना होता था रोज, उसको पिछले को रिवाइज करता था, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश तीनों मेरी न्यूज़पेपर्स हैं मेरे पास। मैंने तीनों की सब्सक्रिप्शन ले रखी, घर पे आती थी। उनका कोई भी एक टॉपिक, ओपिनियन पेज, मैं सारा न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ता था, ओपिनियन पेज का मैंने टॉपिक लेना है, उसको पढ़ना है, बस पढ़ के छोड़ देना है। हैंड राइटिंग के लिए मैं हिंदी में थोड़ा वीक था, तो हिंदी का मैं लिख के देखता था। सबसे छोटा जो मुझे लगता था ना कॉलम, मैं उसको लिख लेता था, ताकि मैं, क्योंकि ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करना चाहता था। वो मैं इंग्लिश के लिए इतना करता होता था। बाकी हम कुछ अगर इम्पोर्टेंट आज की डेट में चल रहा है, वो वेलवर्स लेने के लिए, क्योंकि मैं जब डिनर करता था तो वो सुपर फास्ट चलती होती थी किसी ना किसी न्यूज पे चैनल पे, कभी इंडिया टीवी पे चलता था, कभी डीडी पे चलता था। वो मैं आज भी देखता हूँ। वो 8:20 पे शुरू होता है, 8:20 से लेकर 9 तक वो सुपर फास्ट चलता है। वो मैं आज भी देखता हूँ। उससे यू जस्ट गेट जो जितना हमें चाहिए वो मोर देन सफिशिएंट है हमें, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम और लगा लिया। आई गो टू बेड बाय 10:30 मैं बेड पे हूँ। मैंने उसके बाद ना पढ़ना है ना मोबाइल चलाना है, वो मेरा पक्का होता था। बारिश अभी भी एक दिन अगर मैंने गलती से इसका 11 या 11:30 फोन उठा लिया तो ही इज टेकन अ बैक, तू कैसे जाग रहा है इस टाइम पे। तो 10:30 इज माई टाइम, आई गो टू बेड बाय 10:30। ये आपको लाइक, कईयों को रात को पढ़ने की आदत है तो दिन में अपना स्लीप प्रॉपर ले लो, क्योंकि अगर रात को पढ़ना है तो यू नीड रेस्ट फॉर योर ब्रेन, ठीक है। Make your own strategy that whether you want to get up early in the morning or not. Make your own strategy. Yes, second question. मिथ, हर एक की अपनी नहीं, सेक्शंस वर्ड बाय वर्ड तो कैसे याद रह लेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आप बार बार रिवीजन करते हो, अब मुझे याद नहीं है, इफ यू से मुझे सेक्शन 6 की वर्डिंग एविडेंस एक्ट की डिट्टो याद है, ठीक है। कुछ हैं सेक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी वर्डिंग याद करना आप बार बार पढ़ते जाओगे, आपको हो भी जाएंगी। दैट्स लाइक नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। अगर मुझे कहोगे, मुझे अब तो थोड़ा सा मैं शायद कर दूं, सेक्शन 1 को लेके 165 तक पेपर से पहले मुझे वो याद रहते हैं। Exactly. Now in the class also, we used to repeat the sections so that you may have command over each and every word. Now this was the practice earlier also when they were sitting in the class. सबकी अपनी प्रिपरेशन है, कोई किसी तरह प्रिपेयर करता है। इफ यू से सेक्शन 5 वो शुरू ही होता है, एविडेंस मे बी गिवन इन अ सूट और अ प्रोसीडिंग फॉर अ फैक्ट इन इशू और अ रेलेवेंट फैक्ट एंड ऑफ नो अदर्स। यही है सेक्शन 5 एविडेंस एक्ट का, पूरी वर्डिंग ऐसे ही है, इज एंड आर नहीं चेंज होगा, ठीक है। वो हो जाती है, इट्स नॉट अ मिथ, ठीक है। Avantika, any question? Akhil? बहुत तगड़े लेवल पे कॉन्फिडेंस टेस्ट करते हैं वो, टेस्ट ही आपका कॉन्फिडेंस करते हैं। लेट मी टेल यू माई स्टोरी, मेरे साथ क्या हुआ जाते ही इस बार। एक तो लास्ट टाइम जो इंटरव्यू था वो एकेडमी में था, चंडीगढ़ जुडिशियल एकेडमी में। तो वो क्या था कि जैसे ऐसा रूम इस पैटर्न में, आई हैड टू एंटर फ्रॉम सेंटर। बिल्कुल एंटर करते ही मेरे टेबल पड़ा है, सामने लंबा का लंबा 9 मेंबर्स का पैनल है, ठीक है। वहां पे आई हैड टू वॉक ओनली 2-3 स्टेप्स एंड सिट डाउन, दैट्स इट। मैंने सबको ग्रीट किया, तो मैं उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर्ड था। हरियाणा में व्हाट हैपेंड, इंटरव्यू वाज कंडक्टेड इन द प्रीमिसेस ऑफ हाई कोर्ट ओनली। हाई कोर्ट में इंटरव्यू है, और हाई कोर्ट का खुद का ही सिनेरियो एक ऐसा है कि ना चाहते हुए भी आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। इतनी सिक्योरिटी देख के, इतने प्रोटोकॉल्स देख के आपके ऊपर वैसे ही प्रेशर वहां पे आ जाता है। देन जो रूम में वो इंटरव्यू हुआ था, इट वाज एक्चुअली अ लाइब्रेरी जिसको वेकेट कराया गया था सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ इंटरव्यू। आई हैड टू वॉक अराउंड 18 स्टेप्स टुवर्ड्स द इंटरव्यू पैनल। वो इतना बड़ा रूम था, आपकी आवाज इको कर रही थी। आई वॉक इन द रूम, यहाँ पे चेयर है, यहाँ पे टेबल है। नॉर्मली आपका पानी आपके राइट साइड पे होता है, कभी लेफ्ट साइड पे नहीं होता। मैं लेफ्ट साइड पे गया हूँ, देखा पानी का टेबल वहां पे पड़ा है, मैं मुड़ के फिर उधर को गया। इतने में ही आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। सबने किया है, लाइक मैंने जिनसे पूछा उन्होंने ये चीज की है। आई वेंट टू, मतलब कि मैं उधर गया हूँ, फिर
जाके मैंने सबको ग्रीट किया है, सबने ग्रीट करके मैं जब बैठने लगा हूँ, जस्टिस ही सेड रुको रुको बैठना नहीं है। मैं कहा सर यस, आपने तो मुझे ग्रीट ही नहीं किया। व्हाट कुड बी माय सिचुएशन एट दैट टाइम, दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी इन द इंटरव्यू दिस टाइम। ऐसा था नहीं, मैंने सबको ग्रीट किया, लास्ट मेंबर उनको भी फेस करके मैंने, क्योंकि यू हैव टू ग्रीट ओनली वंस ना, यू कांट ग्रीट एवरीवन वन बाय वन। आपने एक बार सबको ग्रीट किया, देखा, एंड यू हैव टू सेट। तो ये मेरे साथ हुआ है। दिस इज व्हाट दे टेस्टेड माय कॉन्फिडेंस। ये शिवर तो नहीं हो रहा, बैठा। शुरू कैसे होता है इंटरव्यू, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने इंट्रोड्यूस करना शुरू किया तो पैनल मतलब कि नीचे देख रहा। आई थॉट कि मेरा पिच नहीं उनको जा रहा, तो मैंने थोड़ा सा पिच लाउड किया। सारा पैनल मेरी तरफ, ऑनरेबल पैनल मेंबर्स ने मेरी तरफ देखना शुरू किया। जब मेरा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ तो स्ट्रेट अवे जस्टिस जो चेयरमैन थे उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया, चेयरमैन सर ने, कि आई विल आस्क यू लेंथी प्रोपोजिशन, जस्ट यू हैव टू आंसर। अराउंड फॉर 3 to 4 minutes ही केप्ट ऑन नरेटिंग द फैक्ट्स ऑफ द प्रोपोजिशन विद अ सिंपल आंसर। बट वो प्रोपोजिशन इतना लंबा था कि मुझे उसमें से कुछ टेक्स लेने पड़े, ओनली टू कन्विंस द ऑनरेबल चेयरपर्सन कि मैं आपकी बात को प्रॉपरली सुन रहा हूँ। वो मेरा आंसर ठीक था। फिर मैंने ऑनरेबल जस्टिस मंजरी नेहरू कॉल थे, उन्होंने प्रॉपर प्रोपोजिशन पूछी मेरे से एक और, वो भी इतनी लंबी, ठीक है। उसका मैंने रिप्लाई दिया, ऑल्दो माय आंसर वाज टोटली रॉन्ग एंड कॉन्ट्राडिक्टरी टू द लॉ, बट मुझे उनकी हर एक मतलब की प्रोपोजिशन की वो क्लैरिटी थी कि उन्होंने क्या क्या बोला। एक उन्होंने स्कूटर का नंबर भी बोला था, मुझे वो एग्जैक्टली स्कूटर नंबर भी याद था, वो बताया, शायद वो उनको क्लिक कर गया। फिर मुझे डायरेक्टली ऐसे सेक्शन 90 क्या है, सेक्शन 91 क्या, ऐसे पूछा। फिर क्वेश्चन आता है मुझे, ही वाज चेयरमैन ऑफ द एचपीएससी, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, वो भी मैंने आंसर किया, ठीक है। ओनली द टेस्ट इज योर कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट, हम पढ़ते हैं जब आप नोटिफिकेशन देखोगे उसमें क्या है, टू टेस्ट द पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट, टू टेस्ट द सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। हर एक स्टेज का एक पर्पज है, पहले वो समझो। प्रीलिम्स का क्या पर्पज है, इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू कट शॉर्ट द कैंडिडेट, प्रीलिम्स का यही पर्पज है। मेंस का क्या पर्पज है, टू चेक योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मेंस लिख के आयो, मेंस करके आयो, बहुत बड़ी बात है। इट इज द कंपटीशन ऑफ अलीट्स ऑफ अलीट। Exactly. It is also competition among you also. ओनली अलीट्स विल सर्वाइव, बाकी तो कोई नहीं। अब अलीट्स है कौन, आप बन रहे हो, आप बन जाओगे एलीट, ओनली यू हैव टू वर्क हार्ड। अपनी इंटेंशंस क्लियर रखो, फोकस्ड रहो। किसी के साथ भी धोखा चल जाएगा, खुद के साथ तो मत करना कम से कम। मैंने ये नहीं किया कि लाइक अगर मैंने आज पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा। अगर मेरे मार्क्स कम भी आए हैं, ये नहीं हुआ मेरे 52 53 भी आए आउट ऑफ 100। Exactly. उस दिन फिर मैंने वर्कआउट किया, सर ने बताया माधव, उस दिन ये होता था कि सर ने बोला है माधव आज कितने कमी रहेगी, की गलत करके है। मैं तो सर पढ़े नहीं रहता, सर कहते गलत है, पढ़ो। वापस जाके पढ़े हैं, अगले दिन फिर अच्छी इंप्रूवमेंट है। मेरे को सारे पेपर्स भी सॉल्व मेरे संभाले हुए ने, मैं स्पाइरल बाइंड करवा के रखे हुए ने अपने पेपर्स, जेडे सर दे ने टेस्ट शीट, वो स्पाइरल बाइंड करके पे ने। मैं देख लेना वा कितने कमी रहेगी सीगी, तो सारा लाइक कोई एक बार मैं आंसर गलत करता है ना, मेरा नेक्स्ट टाइम वो आंसर नहीं गलत होएगा। मेरे दिमाग स्टिक है ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 18 ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਪੇਪਰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 7-8 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕਸ ਬਣਾਤਾ, ਕੁਝ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਡਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਜਮੈਂਟ ਲਿਖਣੀ, A वर्सेस B, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਜਮੈਂਟ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ ਜਜਮੈਂਟ ਵੱਲ। ਥੀਸ ਆਰ ਨਾਟ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਮਾਰਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਰਿਵੀਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਪਣਾਓ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਆਨਸਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਆਫ CPC, ਉੱਤੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ
डिफरेंट पेन ही यूज किया सी ब्लैक एंड ब्लू सर ने सानू उसी दिन रोकता माधव वो नहीं करता All right, students. Now we will celebrate this success. You come here, all of you. All of you, please come here. Come here in this side. आ जाओ आगे आओ. ऋषभ आगे आओ. रिदम आ जाओ आगे आओ. वाह वाह You must follow now. Okay, Varis, celebrate it. Huh? Informal way च आ जाओ. That's all. Varis.